Students, today we study about the chapter envelope. So first we define what is the family of curves. Here we consider an equation fxy a is equal to 0 in which x and y are variable and a is the arbitrary constant. This equation represents a curve in two dimensions. If we give different values to a, we obtain a number of curves of the same type forming a family. The arbitrary constant is known as parameter of the family. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है एफ एक्स वाई ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x और y ये वेरिएबल हैं, a कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये इक्वेशन टू डायमेंशन में एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यू दें तो उससे सेम टाइप के कर्व फाइंड होंगे जो कि एक फैमिली के मेंबर्स होंगे और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कहा जाता है पैरामीटर ऑफ द फैमिली। फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर example of family of curves of one parameter. This is x square plus y square is equal to a square. We know that this is the equation of the family of circles whose center at origin and radius a. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उस वृत्त का समीकरण है, उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है और रेडियस ए होती है। अगर हम a को डिफरेंट वैल्यूज देंगे, जैसे अगर आप a को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, a को 2 वैल्यू लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जब आप a की 3 वैल्यू लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सो जब हम a के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स मिल रहे हैं जो सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, यानी जिसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा लेकिन रेडियस डिफरेंट होगी। सो हियर ऑल द सर्कल, जस्ट सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज दिस सर्किल ऑफ रेडियस 1, दिस सर्किल ऑफ रेडियस 2, दिस सर्किल ऑफ रेडियस 3 एंड सो ऑन। सो these are called the member of this family of circles. Here we can see that x and y, these are variables and a is an arbitrary constant. If we take some values of a, some different values of a, we get different members of this family of circles whose center at origin and radius a. So this is called one parameter, this is called one parameter family of curves. Suppose if we take y square is equal to 4ax, we know that y square is equal to 4ax. This is the right handed parabola whose vertex at the origin and focus on x axis. Here a is the arbitrary constant and x and y are the variable. So this is the family of curves in one parameter a. If we take different value of a, we get different members of the same family whose vertex at the origin and whose focus on x axis. So if we take a is equal to 1, we get y square equal to 4x. This is the one member of this family of right-handed parabola. If we take a is equal to 2, we get 4 into 2 multiplied by x. So this is y square equal to 8x. If we take a is equal to 3, we get here 12x. If a is equal to 4, we write here this is 16x. So if we take different value of an arbitrary constant a, we get different member of the same family whose vertex at the origin and whose focus lies on the x-axis. So we know that this is, suppose this is y square equal to 4x, this is y square equal to 8x, this is y square equal to 12x, this is y square equal to 16x. So this is the family of
this is the family of this is the family of right-handed right right-handed parabola, and these all are the members of this family. So if we take an equation of the type fxy a is equal to 0, in which x and y are the variable and a is an arbitrary constant, if we take different values of an arbitrary constant a, we get the same type of curve forming a family. Here the arbitrary constant is known as parameter of the family. तो आप देख सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मतलब होता है। अगर कोई हम इक्वेशन इस टाइप की लेते हैं एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स और वाई ये वेरिएबल है और ए आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर हम ए की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो उससे हमको सेम टाइप के कर्व्स फाइंड होंगे जो कि एक फैमिली को बिलोंग करेंगे और वो सब कर्व उस फैमिली के मेंबर्स होंगे। और यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ये फैमिली का पैरामीटर होगा। सो दिस इज कॉल्ड एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स इन वन पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वृत्त का एग्जाम्पल दिया और ये पैराबोला का एग्जाम्पल दिया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में ये उस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस ए है। अगर हम ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे 1 2 3 तो हमको डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सो दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली whose center at origin but the radius is different. And here y square equal to 4ax, this is the right handed parabola। यहाँ पर ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसमें आप ए की डिफरेंट वैल्यू जब लेते हैं 1 2 3 4 तो डिफरेंट मेंबर्स आपको फाइंड होंगे। सो दिस इज द फैमिली ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला इन विच ए इज द पैरामीटर। नाउ इफ वी टेक another type of example, that is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. We know that this is an ellipse. So if we take different value of a and b, so we get different members of this family of ellipse. Here we can see in this equation x and y are the variables and a and b are the arbitrary constants. So if we take a is equal to 1 and b is equal to 2, so we get x square upon 1 plus y square upon 2 is equal to 1. If we take a is equal to 2, b is equal to 1, we get x square upon 2 plus y square upon 1 is equal to 1. So we can see here this is an ellipse and this is also an ellipse. So these are the members of family of curves. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का एक समीकरण लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए और बी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन विच ए एंड बी आर द पैरामीटर्स। If we take different values of a and b, we get the different members of this family of ellipse. So next we define here what is envelope. A curve which touches each member of a family of curves. यानी हमको एक ऐसा कर्व लेना है जो सभी फैमिली के each members को टच करता हो एंड उस कर्व के each पॉइंट को कोई ना कोई मेंबर फैमिली का टच करे तो वो कहलाता है एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। आप एनवेलप की डेफिनेशन में देख सकते हैं, ए कर्व व्हिच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली। यानी हमको एक ऐसा कर्व लेना है जो फैमिली के ईच मेंबर को टच करता हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसा कर्व व्हिच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए
फैमिली ऑफ कर्व, यानी ऐसा कर्व जो किसी फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को टच करता हो एंड ईच पॉइंट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली, और इस कर्व का एवरी पॉइंट किसी न किसी मेंबर से टच होता हो, तो वो कर्व कहलाता है एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। यानी ऐसा कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के सभी मेंबर्स को टच करें और उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी मेंबर से टच हों, तो उस कर्व को एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व कहा जाता है। इसका एग्जांपल है, जैसे कि एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 1/m। वी नो दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमको मालूम है ये y इक्वल टू mx प्लस 1/m, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का ये टेंजेंट की एक इक्वेशन होती है। एंड आल्सो दैट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हैज एट एवरी पॉइंट ए टेंजेंट which is of the form y equal to mx plus 1/m। आपको मालूम है ये y equal to mx plus 1/m touch the parabola y square equal to 4x, and also that the parabola y square is equal to 4x has at every point a tangent which is of the form y equal to mx plus 1/m। यानी पैराबोला y square equal to 4x के प्रत्येक पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो इस फॉर्म में होती है y इक्वल टू mx प्लस 1/m, और ये टेंजेंट ये इस पैराबोला को टच करती है, इसलिए ये पैराबोला इस गिवन लाइन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx प्लस 1/m का एनवेलप होगा। तो इस तरीके से आपने समझी एनवेलप की डिफिनेशन। अब हम आगे क्वेश्चन इसके करेंगे। थैंक यू।